بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت علی پر زہریلی تلوار سے حملہ ہوا، دوستوں، تمام صحابہ اکرام میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی بن ابو طالب کی ہے کہ جنہیں خود بھی شہید کیا گیا اور پھر ان کے بعد ان کی اولادوں میں سے ایک بچے کو ذبح کیا گیا۔ پھر آگے چل کر 50 سال بعد ابو ظفر منصور نے حضرت علی کی سبھی اولادوں کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں قید کروایا اور حکم دیا کہ اس کمرے میں ہوا جانے کا ایک سراغ بھی نہ رکھا جائے، اور پھر آخر کئی دنوں کی شدت برداشت کرنے کے بعد حضرت علی کی وہ ساری اولادیں اسی کمرے میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گئیں۔ دوستوں، حضرت علی ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھا کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تو اکیلے حضرت علی اسلام لائے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اے میرے خاندان والوں، آپ میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو اس وقت کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، صرف حضرت علی ہی تھے جو 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے، پھر بھی میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گا، کسی موقع پر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے ساری زندگی اپنے اس وعدے کو نبھا کر بھی دکھایا کہ اپنے رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ دوستوں، مسلم تاریخ میں جب کسی بھی سب سے طاقتور مجاہد کی بات ہوتی ہے تو ان میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آتا ہے وہ حضرت علی ہی ہے۔ دنیا حضرت علی کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پچھاڑنا یا پھر خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ ان سب کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا، اس پر کافروں کو بڑا فخر تھا۔ اسی نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں آج اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ عمرو بن عبد ود اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی للکار پر نہ اٹھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کر سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جانے دیں، پھر آپ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میدان میں پہنچتے ہی حضرت علی نے اس ظالم پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے اور کافروں کا گھمنڈ مٹی میں مل کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی کہ جس میں جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر سب سے اہم ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی نے لڑی تھی۔ ان جنگوں میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا دی اور آخر میں حضرت علی کے ہی کچھ کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ تو لشکر پر شیر کی طرح حملہ کرتے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا۔ حضرت علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ لیڈر تھے کہ جن کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا
व आखिरत में अपने भाई होने का खिताब दिया और गदीर खम में हज़रत अली का हाथ उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत फरमाएं, और जो अली से नफ़रत करे आप भी उससे नफ़रत फरमाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में जिस कदर बहादुर व ताकतवर थे कि असल ज़िंदगी में उतने ही नर्म और इंसाफ पसंद थे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस्लाम के इस अजीम सिपाही को कैसे शहीद कर दिया गया। असल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान में तो कभी कोई हरा ना पाया, क्योंकि उनकी ताकत के आगे बड़े बड़े बहादुर कमज़ोर पड़ जाते थे। इसलिए एक बदबख्त इंसान ने नमाज की हालत में उन्हें चुपके से शहीद किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने वाले जालिम इंसान का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्ज़िम था। इब्ने मुल्ज़िम दरअसल पहले हज़रत अली ही का साथी था और उसने आपके हाथों पर बैत भी की, लेकिन फिर सिफ़ीन की जंग में वो बागी होकर दुश्मनों के साथ जा मिला और जंगे नहरवान में उसने हज़रत अली के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में वो अपनी जान बचाकर कूफा शहर भाग गया। कूफा शहर में इब्ने मुलाजिम की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई कि जिसका नाम कत्तान था। उसे देखते ही इब्ने मुल्जिम उसका आशिक बन गया और जाकर उससे कहने लगा कि ए लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की हज़रत अली से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसके बाप ने हज़रत अली को काफिर कह के जंगे नहरवान में उनके खिलाफ तलवार उठाई थी कि जिसकी सज़ा में हज़रत अली ने खुद ही उसे कत्ल कर दिया। इसलिए उसकी बेटी कत्तान हज़रत अली से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि हर वक्त उनके खून की प्यासी रहती। जब इब्ने मुल्जिम उस कत्तान नामी लड़की का आशिक बन गया तो उस लड़की ने इब्ने मुल्जिम से कहा कि अगर तुम अली बिन अबू तालिब को कत्ल कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लड़की की मोहब्बत में आकर इब्ने मुल्जिम हज़रत अली को शहीद करने के लिए तैयार हो गया। सन 40 हिजरी का साल था और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। उस वक्त हज़रत अली की उम्र 63 साल हो चुकी थी। रमज़ान में हज़रत अली अपने बच्चों के ही घरों पर इफ्तार किया करते थे। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद हज़रत अली इफ्तार के बाद बहुत कम ही खाते थे। एक दिन आपके लड़कों में से किसी ने पूछा कि आखिर आप इतना कम क्यों खाते हैं, तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत ऐसी हालत में हो कि मेरा पेट भरा हो। 19 रमज़ान की रात हज़रत अली अपनी बेटी उम्मे कुलसुम के घर पर मेहमान थे। बेटी ने इफ्तारी में जौ की रोटियां, दूध और नमक पेश किया तो हज़रत अली ने फरमाया कि दूध का प्याला उठा लूं और फिर नमक व रोटी से इफ्तार किया। इफ्तारी के बाद नमाज में मशगूल हो गए। हज़रत अली सारी रात दुआएं करते रहे। उस रात थोड़ी थोड़ी देर बाद हज़रत अली अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते और आसमान की तरफ देखते हुए कहते कि खुदा की कसम, ये वही रात है कि जिसके बारे में हुजूर ने मुझसे फरमाया था कि उस रात की सुबह तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। जब फजर का वक्त हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ने के इरादे से घर से बाहर निकले तो अचानक आपके सामने बहुत सी बत्तखें और मुर्गे आकर चिल्लाने लगे। वो एक तरह से हज़रत अली को मस्जिद की तरफ जाने से रोक रहे थे, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमर बांधी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली समझ रहे थे कि आखिर वो मुर्गे और बत्तखें क्यों उनके रास्ते में आकर उन्हें मस्जिद जाने से रोक रही थी। उन दिनों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा शहर में थे। मस्जिद में पहुंचते ही हज़रत अली ने सभी लोगों को जगाया। इब्ने मुल्जिम भी मस्जिद में सोया हुआ था। हज़रत अली ने जाकर उसे भी जगाया। उसने अपने पास एक तलवार छुपा रखी थी कि जिसको उसने पूरे 1 महीने तक जहर में भिगो कर रखा था और उस तलवार पर ऐसा जहर लगाया था कि जिसके असर से मौत बहुत जल्द वाक़ई हो जाए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए इमामत के मुसल्ले पर खड़े हुए और पहली रकात के सजदे से सर उठाया तो इब्ने मुल्जिम ने मौका देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार कर दिया। वो जहरीली तलवार की चोट हज़रत अली के माथे पर जाकर लगी और खून बहते हुए हज़रत अली की दाढ़ी में आ गया कि जिसे देखकर हज़रत अली ने कहा कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बार हज़रत अली बहुत बीमार पड़ गए।
तो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब मुझे लगता है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं ए अली, तेरी वफ़ात उस वक्त होगी जब तेरे सर का खून तेरी दाढ़ी को तार कर देगा। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इब्ने मुल्ज़िम के सर पर वार से अपनी दाढ़ी को खून में तर देखा तो कहने लगे कि अब मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करने के बाद इब्ने मुल्ज़िम ने मस्जिद से भागना चाहा, लेकिन सहाबा इकराम ने उसे पकड़ लिया। हज़रत अली बेहोश हो चुके थे। जब होश आया तो देखा कि लोगों ने इब्ने मुल्ज़िम को जंजीरों में जकड़ रखा है। तलवार उसकी गर्दन पर रखी थी। सब इंतज़ार में थे कि हज़रत अली इशारा करें और इब्ने मुल्ज़िम की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन हज़रत अली ने होश में आते ही हुक्म दिया कि तलवार इब्ने मुल्ज़िम की गर्दन से हटाई जाए, और फिर उस जालिम इंसान से कहा कि क्या मैंने तेरे साथ कोई बुरा सलूक किया था या मैं कोई इंसाफ ना करने वाला खलीफा था? आखिर तूने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? तो इब्ने मुल्ज़िम के पास कोई जवाब ना था। ज़ख्मी हालत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर लाया गया। हज़रत ज़ैनब ने जैसे ही देखा तो पकड़कर सर रोने लगी। थोड़ी देर बाद हज़रत हसन ने आपके सामने दूध का प्याला पेश किया तो आपने फरमाया कि ए मेरे बेटे, जाओ और पहले मुझ पर हमला करने वाले कैदी को पिलाओ। और फिर हज़रत अली ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन से कहा कि ए हसन, मुझ पर हमला करने वाले कैदी के साथ अच्छा सलूक करना, उस पर सख्ती ना रखना। अगर मैं जिंदा रहा तो खुद ही उससे बदला ले लूँगा, और अगर मेरी वफ़ात हो गई तो किसास में उसे कत्ल कर देना। लेकिन कत्ल करते वक्त एक बात का ख्याल रखना कि एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ाना, ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। आखिर 21 रमज़ानुल मुबारक की रात अल्लाह के और उसके प्यारे रसूल की शेर हज़रत अली की रूह इस दुनिया से परवाज़ कर गई। हज़रत अली शेर खुदा की शहादत के बाद हज़रत हसन ने इब्ने मुल्ज़िम को अपनी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दिया, और फिर गुस्से में भरे लोगों ने इब्ने मुल्ज़िम की लाश को जला डाला। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती है कि जिनकी फ़जीलतें हदीस की किताबों में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत अली शेर खुदा से की। यहाँ तक कि एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और कहा कि ए अली, क्या तू इस बात से राज़ी नहीं कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा? तो हज़रत अली की आंखों में आंसू भर आए और आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए हुजूर को जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं राज़ी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा की तरह हमारा भी ईमान मजबूत फरमा और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और हाथ उठाएं और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।